Okay. Good morning, everyone. This is 10th lecture on strength of materials, and we have covered till now number of topics, including simple stresses and strains. Then we discussed about the shear force and bending moment diagrams. Then bending stress. Then the shear stress due to transverse loading, shear stress due to torsion. All these things we discussed. So in this we were discussing some standard cases where the load was either uniaxial or biaxial, or else sometimes there was pure shearing stress, sometimes there was a bending stress. How the material behaves in all those cases and how to calculate all these stresses we have understood. Now today we'll be going for some very important topic, which is principal stresses and principal strains, and the very important as far as your exam point of view, important for understanding the designing of materials in the future courses in machine design 1, 2, and even in designing of mechanical systems. So whenever we design any particular component, so whatever the stress we take into consideration, the maximum times we take principal stress into consideration. Now, what is that principal stress? Why it is very important? How it affects your the strength of the component, and how to calculate it, how to locate it, where the principal stress will be, where it is going to be maximum, where it is going to be minimum, and all those things. So let us go for understanding a simple case. Let us have some introduction of principal stresses. Now, we have seen different types of loadings. Out of that, the very simple loading was a uniaxial loading, right? Everybody knows what is uniaxial loading. Anybody from you can answer? What is uniaxial loading? Yes. Any volunteer from your side? What is uniaxial loading? Anyone? No one? And load is now a single axis. Okay, load has a single axis. Okay, good. So basically, either it can be a tensile or a compressive load. Single axis पे अगर load होगा, तो it can be either a tensile or a compressive load. Let's see. We'll take a simple example like that. Okay. So let us take one rectangular bar. So let us take the rectangular bar. Okay. This is the rectangular bar. इसका क्रॉस सेक्शन कुछ तो होगा. क्रॉस सेक्शन मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ. क्रॉस सेक्शन let's say this is a simple rectangular bar. ये इसका क्रॉस सेक्शन है, right? Similarly ये साइड पे भी होगा. Now what we have done, let us say we have applied a force, a tensile force on this particular bar. The tensile force is P. How much force we have applied? P. So because of this force, what will happen? Which kind of stress will be there? Yes, can you answer? Which kind of stress will be there? Tensile stress. Tensile stress. Very good. Tensile stress. Now because of tensile stress, which dimensions are going to vary? Length. Length and height. Length and height. All dimension. Area which is perpendicular to the axis. Okay. Area which is perpendicular to the axis of the so basically length, breadth, height, सब कुछ dimension change हो सकता है if I apply the force. Now, what will be the stress on this particular cross section area? What will be the stress? Can you tell me? Suppose अगर मैं यहाँ पे एक layer लेता हूँ, एक cross sectional layer लेता हूँ ऐसे. Let us take with some different colors. I have a layer AB. Okay, this is point A, point B. ये particular plane अगर है AB plane, दिख रहा है सबको? It is parallel to the cross section. So इसके ऊपर stress आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा stress आएगा?
the stress will be in this direction. Is it so? Which type of stress it is? The stress will be, let's say we are calling it as sigma x. Tensile stress आएगा, but x direction में इसलिए मैंने x बोला. Sigma x. Can you tell me what is the formula for sigma x? क्या होता है stress? P by A. Yes, it is P, load by area of cross section. Now let us take the thickness of this is T, okay, and the width of this is B, okay, B into T. So can I write this is P divided by B into T, okay, P divided by B into T, fine. और rather B into T लिखने से अच्छा मैं AB into T लिखता हूँ. AB is the side जो भी है into thickness. I have assumed there is a unit thickness और T का value कुछ तो होगा which is fixed. I don't know. So AB into T I have written. This is my simple area, the stress, direct stress which is there on this particular plate. Okay. So what do you say कि इसमें अभी ये जो पूरा मटेरियल है इसमें बहुत सारे प्लेन्स होंगे. Is it no? ऐसे बहुत सारे प्लेन्स है. हर जगह पे सब प्लेन्स पे कौन सा स्ट्रेस होगा? Tensile stress आएगा. Now this tensile stress can I also call it a direct or normal stress? इसको मैं normal भी बोल सकता हूँ. What do you mean by normal stress? What do you mean by normal stress? Normal Perpendicular stress to is the face. stress which is perpendicular to the plane, right? So it is perpendicular to this plane. So अगर वो perpendicular है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? Normal stress. Fine. Now, is there मतलब ये particular bar में is there any plane on which the shear stress will act? Possible है क्या? Everybody knows what is the shear stress, right? सबको अभी पता है shear stress क्या होता है. And shear stress कैसे आता है? तो इसमें ऐसा कोई plane है क्या जहाँ पे shear stress भी act करेगा? नहीं सर. लगता तो नहीं ना, हमने अप्लाई नहीं किया shear stress, right? Is it not? Yes, yes. You can give your. नहीं लगेगा सर क्योंकि हमें मतलब एक काइंड ऑफ टॉर्क चाहिए टू मतलब जनरेट shear stress. मतलब कोई कैसे हम सर एक लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. Okay, yes or no? Yes or no में चलेगा मुझे. मैं आगे का बताऊंगा. नहीं आएगा. नहीं सर. Okay, what about Tushar has given his answer. What about others? So matre. And one more thing, as 90 people are listening, I don't know how many are listening, but still, I have every time. Last time also I figured out. After the conclusion of this lecture, only उनको पता भी नहीं होता. There are so many 20-30 people which I have figured out. We are still there in the meeting even after the half an hour is gone. So don't do like this. Be attentive. I'm trying to make it as interactive as possible. Okay. So give your suggestions, give your opinions, ask your doubts so that it will be clear. This is a very difficult chapter to understand because and it will give you a basics of strength of materials. Okay. So therefore, do not ignore this. Many people what will think is the weightage of this chapter is not as much as compared to the earlier what we have studied, but this will give you the foundation for understanding the understanding of all other future subjects which are lined up in the coming semesters. So do not ignore this just for the sake of passing this strength of materials. Okay, fine. So I want more and more interaction. Every time I have few people who are actually there in the lecture. Like Tushar is there, Rohit is there, all the CRs, Shambhavi, Om, या फिर अपना क्या दूसरा. Sometimes Arya is also there, Advait. These are some students, those who are actually active. So I want some new names today. Akash Chandra Pandey is also there. Okay, fine. Chalo. Yes, go ahead. So Tushar is saying that there won't be any shear stress. What about others? No idea. So let's see. Sir, yes. सर रहेगा. रहेगा. हाँ. कैसे रहेगा? Yes. क्यों रहेगा? सर वो दूसरे प्लेन के लिए पैरेलल फोर्स हो जाएगा तो वहाँ पे होने का चांसेस है. Okay. टॉप मोस्ट प्लेन के लिए और बॉटम वाले प्लेन के लिए. Okay. Fine. Now see here. Suppose if I take a plane inclined to this particular plane. Suppose if I take a plane inclined like this. मैंने एक inclined plane लिया. Okay. This plane is inclined in such a way that
लेट्स से दिस इज पॉइंट सी एंड ये प्लेन को मैं उधर भी ज्वाइन करता हूँ. ये मेरा ऐसा वाला प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन. कैन यू सी दिस इंक्लाइन प्लेन? ये वाला. अब ये इंक्लाइन प्लेन मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ. Like this. This was B, C. Now on this inclined plane, how the load P was acting? It was acting horizontal only, ना? वो inclined plane के लिए ये load P ऐसा horizontally रहेगा. So can I resolve this particular load? Can I resolve? ये load को अगर मैं resolve करता हूँ तो एक आएगा उसको ऐसा, right? और एक आएगा ऐसे. Now see here, which is this load? This is a normal component of the load and this is a tangential component of the load. Is it not? बराबर ना? तो ये पर्टिकुलर प्लेन जो लिया मैंने BC प्लेन, उसके ऊपर अगर ये मेरा P जो लोड है अभी, now let us give some angle here. Let us take this angle is theta. ये एंगल थीटा है, ठीक है? सो मुझे बताओ, अगर ऐसा मैंने लिया, ये एंगल मेरा थीटा है BC का. 2 डायमेंशन में एंगल समझना इजी होता है. सो लेट अस टेक दिस इज माय एंगल थीटा. ओके, ये पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट हमारा A, सॉरी दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. एंड मेरा जो लोड था वो पहले ऐसा था. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लोड को यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ इन सच अ वे दैट it is one component is perpendicular to this BC and one component is parallel to this BC. This component I am calling it as PN and this component I am calling it as PT. Okay, now can you tell me what will be the value of PN and PT in terms of angle theta? Angle theta यहाँ पे है. PT is P sin theta and PN is P cos theta. PN is P Cos theta. PN right there. will be sin theta रहेगा सर, और परपेंडिकुलर वाला sin theta रहेगा, और जो ये PT है वो cos theta रहेगा. PT cos theta, सॉरी P cos theta. Tangential जो है वो क्या रहेगा? Sin. नहीं, cos रहेगा, P cos theta. ओके ओके, अच्छा ठीक है. वो कंफ्यूजन अगर हटाने का है तो व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट्स से एंगल हम लोग वर्टिकल के साथ जो लिया है वो ऐसा लेते हैं कि दिस एंगल इज व्हिच आई हैव टेकन एंगल विद हॉरिजॉन्टल अगर लेता हूँ, दिस इज थीटा. लेट्स से नाउ टेल मी, अगर वो एंगल थीटा है, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. देन दिस वुड बी P cos theta and this would be P sin theta. Is it so? अभी पॉसिबल है? ये बराबर है? सिंपल किया मैंने. Z दिख रहा है ना तुम्हें ऐसे, राइट ना? अगर ये एंगल थीटा है तो अच्छा उल्टा लिखा मैंने, सॉरी. एक मिनट, मैं डायग्राम ही वापस बनाता हूँ, थोड़ा क्लमसी हो गया. लेट अस नॉट राइट डाउन दैट वे. Let's take the original case only. Let us take this angle is theta. ये भी थोड़ा सा क्लमसी हो रहा है, मैं ये सब हटा देता हूँ. Okay. Yeah. Now you can see the plane ABC, BC वाला plane. Now this BC plane is inclined with respect to AB वाला plane. AB वाला plane perpendicular था, अभी वो plane को मैंने incline किया है. Okay. तो अगर वो plane को मैं incline करता हूँ, ठीक है, तो in that case I'll have to assume some angle, right ना? तो वो angle मैं assume कर रहा हूँ as this angle as theta. So I have, this is my BC, okay. ये एंगल मैंने अज्यूम किया थीटा है, ओके. ये एंगल मैंने अज्यूम किया थीटा है. तो अगर मैं एक लोड अप्लाई करता हूँ P यहाँ पे, तो ये लोड को अगर मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? 90 माइनस थीटा. एंड व्हाट विल बी दिस एंगल? अगर इसको परपेंडिकुलर और रिजॉल्व करेंगे, दूसरा कलर यूज करता हूँ. अगर मैं ये परपेंडिकुलर इज P cos. हाँ, वेरी गुड, ठीक है. तो ये मेरा ये होगा एंगल थीटा, राइट. सो दिस विल बी P cos theta, this will be P sin. P cos theta can I write it as normal force and P sin theta can I write it as the tangential force? बराबर है.
तो मेरा जो प्लेन BC है उसके ऊपर एक फोर्स है टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, एक फोर्स है नॉर्मल एक्ट कर रहा है, बिकॉज जो भी मैंने अप्लाई किया था लोड, उसी लोड को मैंने आगे लेके जाके रिजॉल्व किया. So now can you say that कि BC प्लेन पे दोनों टाइप का स्ट्रेसेस आ रहा है, shear भी है, राइट? है कि नहीं है? Yes. है ना, shear स्ट्रेस. So therefore ये जो प्लेन BC है, ये प्लेन पे दो टाइप का स्ट्रेस होगा. एक स्ट्रेस होगा सिग्मा नॉर्मल, राइट? एंड एक स्ट्रेस कौन सा होगा? shear स्ट्रेस टाउ. बराबर है? तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा तो shear स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा तो डायरेक्शन सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स आएगा तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा. दैट वी हैव स्टडीड. नाउ लेट अस ट्राई टू गेट दैट रिलेशन ऑफ सिग्मा n एंड टाउ इन टर्म्स ऑफ द लोड व्हिच हैव अप्लाइड और द स्ट्रेस व्हिच वी नो. हमें यही स्ट्रेस पता था, अभी तक तो हमने खाली यही पढ़ा, सिग्मा x लोड अपॉन एरिया. इज इट नॉट? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में यही पढ़ते थे हम, कितना टेंसाइल स्ट्रेस आएगा. सो अभी ये जो ऑब्लिक प्लेन लिया था मैंने, ऑन दैट ऑब्लिक प्लेन what is the stress value in terms of the given stress? Let us try to calculate it. Now suppose if I want to find out sigma n, कैसे find करूंगा मैं sigma n? Normal stress क्या होता है? It is normal force divided by area. But is that the same area? It has to be different area A dash, because ये जो inclined face है इसका area कुछ अलग रहेगा. Of course ना, सब same तो नहीं रहेगा वो area. तो अगर वो area अलग है, ठीक है, तो वो area कितना है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे और एक वही सेम ट्रायंगल बना के रखता हूँ. सी हियर, दिस इज माय थीटा, ये मेरा AB था और ये मेरा BC है. नाउ इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज cos थीटा? व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड व्हिच इज AB एंड हाइपोटेन्यूज व्हिच इज BC. बराबर है? बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो BC इक्वल टू क्या आएगा? AB upon cos theta. Okay, सबको याद है ये AB upon cos theta. This is important. This we are going to use AB upon cos theta. Now see here, what is the normal area? Normal stress, normal force कौन सा है? P cos theta. P cos theta. What is the area of this shape? इसका एरिया A है dash. BC multiply by T. ये T तो सेम ही है ना thickness. हाँ. Can I write it is BC multiply by T? बराबर. So P cos theta as it is लिखता, what is BC? AB upon cos theta. AB upon cos theta into T. ये cos theta ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? Cos square theta. P cos square theta upon ABT. AB into T. Now what is P upon AB into T? What is P upon AB into T? Sigma x. Can I write this as sigma x into cos square theta? लिख सकता हूँ ये? So we got one relation, right? Let's say this is A. Now similarly, if I write for shear stress tau, what is the shear stress? It is tangential force upon area A dash, right? Now tangential force upon area A dash. What is tangential force? P sin theta. What is A dash? अभी डायरेक्ट लिखो क्या A dash? It is AB upon cos theta into T. वही है ना, देखो यहाँ से वही लिखा मैंने, ठीक है. तो ये cos theta भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? P sin theta cos theta upon AB into T. What is P upon AB into T? Sigma x. अभी इसको क्या लिखता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. 2 sin theta cos theta upon 2. What is 2 sin theta cos theta? Sin theta. So can I write this as sigma x sin 2 theta by 2? बराबर है? तो हमें जो इक्वेशन मैंने निकाले, ये दोनों इक्वेशंस क्या बता रहे हैं? ये दोनों इक्वेशंस ये बता रहे हैं कि तुम मटेरियल पे कोई भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, उसका स्ट्रेसेस अलग अलग प्लेन पे दोनों स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है. देयर विल बी अ प्लेन्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स एट एन एंगल. देखो अगर मैं यहाँ पे अभी एंगल चेंज करता हूँ तो मेरा प्लेन चेंज होते जाएगा, बराबर. व्हाट इज एंगल फॉर द प्लेन AB प्लेन? व्हाट इज एंगल थीटा फॉर AB प्लेन? 0, राइट ना. AB प्लेन का एंगल कितना है उसके साथ? 0 है, ठीक है. तो व्हेन माय एंगल इज 0, व्हाट इज माय स्ट्रेस? सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, Perpendicular sigma face. x रहेगा, sigma x. एंड व्हाट अबाउट टाउ? 0. 0. 0, बराबर.
हाँ बाद में मैंने एंगल चेंज किया, लेट से मैं एंगल 90 बोलता हूँ, एंगल 90 मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा वाला प्लेन हो जाएगा, ये वाला। हाँ सर। हाँ, तो वो वाला प्लेन पे कितना सिग्मा रहेगा, एंगल 90, सिग्मा 0 हो जाएगा, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाएगा, और हाँ सर। टेंजेंशियल का वैल्यू आएगा, टाउ रहेगा, टाउ रहेगा, टाउ भी 0 आ जाएगा, सिग्मा बाय भी 0 आएगा, मतलब वो टाउ प्लेन भी पे कोई 0 स्ट्रेस आएगा। नहीं आएगा, बराबर ना। हाँ सर। हाँ वैसे ही मैंने एंगल कितना भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं, 0 से लेके 360 तक, आई कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। So with my angle, change in the angle, my plane changes, and on different planes, the values of shear stress and the normal stress are different. All of you agree this, Yes. Yes sir. right? तो इस प्लेन, ये सब प्लेन में से ऐसे कुछ प्लेन्स है वो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल। तो अभी देखो ऐसा एक प्लेन ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, आई वुड लाइक टू गिव यू द डेफिनेशन। I would like to give you the definition. So, a plane on which only normal stress is present in a material is known as principal plane. And the stress is known as principal stress. So what is a principal plane? अभी इसमें से बताओ कौन सा प्रिंसिपल प्लेन है, ऐसा प्लेन जहां पे क्या है, AB प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है ही नहीं। तो ये कब होने वाला है, इन आर केस, सी हियर, इफ आई टेक थीटा इक्वल टू 0, तो व्हाट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स व्हाट इज टाउ इक्वल टू 0 0, हाँ, तो ये कौन से प्लेन पे आया, थीटा 0, मतलब कौन सा प्लेन है मेरा, ए बी वाला प्लेन। AB तो मेरा जो ए बी प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन है। तो अभी तक तुम्हें अभी समझा रहेगा कि अभी तक जितना हमने इससे पहले जितने भी प्लेन्स पढ़े वो सब प्रिंसिपल प्लेन्स ही पढ़े, वी डिडंट स्टडी एनी ऑफ द ऑब्लिक प्लेन, राइट ना, yes sir, right? So what is the principal plane? A plane on which only normal stress is there is no shear stress. Shear stress has to be 0, shear stress has to be 0, okay? And then the plane can be called as principal plane and the stress can be called as principal stress, okay? Now ऐसा एक ही प्लेन होगा क्या, तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थीटा 0 लिया या फिर थीटा 180 लिया, क्या होगा, व्हाट इज cos 180, -1 ना। हाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल में एक ही प्रिंसिपल प्लेन है, देयर विल बी 2 प्रिंसिपल प्लेन्स। मतलब जब भी मैं कोई भी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, देयर विल बी मिनिमम 2 प्लेन्स ऑन विच द shear stress will be 0। तो कंडीशन क्या है प्रिंसिपल प्लेन का, प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या है कंडीशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस का कि कौन सा स्ट्रेस 0 होना चाहिए, shear stress shear stress 0 होना चाहिए। और ऐसे जनरली हमेशा 2 प्लेन्स रहेंगे, ओके? उसमें से वो दोनों में से दोनों पे shear stress तो 0 रहेगा, बट दोनों का जो डायरेक्ट स्ट्रेस है एक में मैक्सिमम रहेगा एक में कम रहेगा। तो जो मैक्सिमम है, जो ज्यादा है, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड जो कम है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एंड द प्लेन हैविंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, and the plane having minor principal stress will be called as minor principal plane. We will be going in detail about this, but now just now you understand, forget about major minor, what is the principal plane, you understood, have you understood this, what is the principal plane, batao, what is the principal plane? the plane on which only the normal stress is acted and the shear stress is 0. Okay, very good, very good. Now see here, now see, abhi humne do equations to derive kiya, can you tell me when this shear stress is going to be maximum, when this shear stress is going to be maximum? Now for shear stress, pi by 4,
ठीक है, टाउ मैक्सिमम अगर देखना है मुझे तो उसके लिए मेरा साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, Nine one उससे होता है. ज्यादा बढ़ता नहीं है, राइट? सो देयरफॉर अगर साइन 2 थीटा 1 है तो मतलब ये 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 Pi डिग्री, by एंड देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 40, 45. 45 degree. 45 डिग्री। ऑल ऑफ यू एग्री? मतलब Yes. 45 डिग्री पे एक जो प्लेन होगा, वो प्लेन कौन सा प्लेन होगा? वो प्रिंसिपल प्लेन होगा क्या? नहीं, नहीं, वो प्लेन होगा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कौन सा प्लेन होगा? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. तो कभी कभी ये तुमने कभी कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, लेट्स से सपोज तुमने एक कॉलम लिया, वर्टिकल कॉलम लिया जो ग्राउंड में सपोर्टेड है, और ये कॉलम के ऊपर तुम लोड देते जा रहे हो, और लोड दे रहे हो, तुम ये इंश्योर कर रहे हो कि भाई इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो मटेरियल का जो कैपेसिटी उससे कम है, ठीक है, तुम लोड दे रहे हो, बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट कॉलम विल फेल अलोंग दिस एंगल, ऐसे फेल हो जाएगा, शेयर ऑफ हो जाएगा, कंप्रेस तो नहीं होगा बट शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलती हुआ? यहाँ पे गलती हुआ कि जो डिजाइनर था उसने कंप्रेसिव स्ट्रेस का तो ध्यान रखा, बट उसने शेयर स्ट्रेस का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि लोड भले तुम एक्शन लगाओ, देयर विल बी अ 45 डिग्री प्लेन, जहाँ पे एज यू कैन सी अभी हमने यहाँ पे देखा, हमने लोड कौन सा अप्लाई किया? एक्शियल, ठीक है, बट देयर इज अ प्लेन एट 45 डिग्री एंगल वेयर द शियर स्ट्रेस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, एंड ये मटेरियल का शियर कैपेसिटी भी होता है, शियर मॉड्यूलस भी होता है, राइट ना? तो अगर तुम्हारे डायरेक्ट लोड जो अप्लाई कर रहे हो तुम, उसके वजह से 45 डिग्री प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो अगर उसके मटेरियल की कैपेसिटी के बाहर है तो इट विल फेल इन शियर, नॉट इन कंप्रेशन। इज इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes sir. तो मतलब तुम कैसा भी लोड लगाओ, there will be different planes on which both shear and normal stresses will be there, and therefore we want to find out कि on which plane what is the maximum principal stress and on which plane what is the maximum shear stress, so that before applying the loading we want to make sure that it should not fail in both the conditions. Getting it? Understanding it? So this Yes, is the sir. importance why we are interested in finding the location of principal planes and the maximum shear plane and the values of principal stress and the maximum shear stress value. Okay? Yes, sir. Yes. Any doubt? Up till now? सर बोलो. एक डाउट है, मतलब आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि देयर विल बी अ प्लेन इन एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू एंड अ स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू, बट सर इसमें एक चीज है कि हम कैसे मतलब फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्लेन में रहेगा, बट उसका ऑब्जेक्टिव मतलब वो कैसे I'm not clearly- getting your question. Can you reframe it? एक 1 मिनट सर। से हमें पता है कि कोई भी हर प्लेन पे हर एक ऑब्जेक्ट में किसी एक प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू रहेगी, बट हम जनरली जो कंसीडर करते हैं, हम नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन कंसीडर करते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। जो प्लेन्स होती है नॉर्मल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हम कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू या स्ट्रेस वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो कैसे डिफर करेगी उससे कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो मैक्सिमम आएगी? कोई रिलेशन होता है कि मतलब डिपेंड करता है? ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, रुको, गोइंग टुवर्ड्स दैट। गिविंग यू दिस इज द यूनिएक्सियल लोडिंग, वी अंडरस्टूड। तो यूनिएक्सियल लोडिंग में हमें पता चला कि अगर यूनिएक्सियल लोड है तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी ऑफ द प्लेन, ठीक है? ये ऑब्लिक प्लेन कोई भी एंगल थीटा दिया तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? वो प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस है, कितना शियर स्ट्रेस है, कर सकते हो अभी ये दो रिलेशन से, ए और बी रिलेशन से। यस सर। हाँ, तो बाद में अगर तुम्हें ये रिलेशंस पता है तो यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम है और कहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। इज इट नॉट राइट? बट ये है यूनिएक्सियल लोडिंग, बट देयर आर सम कंपोनेंट्स जहाँ पे बायएक्सियल लोडिंग होगा, ट्राइएक्सियल लोडिंग होगा। सो वी विल हैव अ पर्टिकुलर formula or a method to find out where the principal stress is maximum and how much is the value, where the shear stress is maximum, what is the value. Okay, we're going to do that. Okay, everybody has understood this? No doubt? Yes sir. Now can you tell me once Yes, sir. again, what is the principal stress? What is the principal plane? लोगों को क्या लगता है, वापस से मैं बता रहा हूँ, लोगों को लगता है जो मैं इंक्लाइन लाइन बनाता हूँ, ये BC मेरा प्रिंसिपल प्लेन है क्या? Is this BC my principal sir. plane in this No, case? No sir. No. No, it is No, just sir. an oblique plane. Okay. What is the principal plane? A plane on which
only now normal stress acts, there is no shear stress. Okay, and what is a maximum shear stress plane? A plane on which maximum shear stress will act. अभी वो maximum shear stress है, मतलब अभी देखो ये plane जो मैंने लिया at 45 degree angle, ये 45 degree plane पे shear stress तो maximum होगा, तो इसका मतलब ये है कि normal stress 0 होगा? तो no, normal stress did not to be equated with 0. तो 0 नहीं रहेगा, कुछ तो value रहेगा उसका. Are you understanding it? 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वैसा कंडीशन नहीं है. प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या कंडीशन है कि shear stress 0 होगा, बट मैक्सिमम shear stress वाला जो प्लेन है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है. एक ही कंडीशन है कि टाउ मैक्सिमम होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर. मुझे लगता है ये वाइस Yes, वर्सा है करके. इट इज नॉट अ वाइस वर्सा केस कि प्रिंसिपल प्लेन बोला तो सिग्मा एन का वैल्यू रहेगा, टाउ 0 रहेगा, और प्रिंसिपल सॉरी मैक्सिमम shear stress बोला तो टाउ मैक्सिमम और सिग्मा एन 0. इट्स नॉट दैट वे. सिग्मा एन मे और मे नॉट बी 0. देयर विल बी अ केस इट कैन बी 0, देयर विल बी मैक्सिमम टाइम्स वो 0 नहीं होता. ठीक है, तो उसका कुछ भी वैल्यू होने दो. हमारे पास क्या है कंडीशन कि टाउ मैक्सिमम है, तो वो प्लेन कौन सा है? मैक्सिमम शेयर प्लेन. ओके, एंड अगर मेरा टाउ 0 है तो वो प्लेन कौन सा है? मैक्सिमम सॉरी प्रिंसिपल प्लेन. ओके, अंडरस्टूड? Yes. Okay, so Yes, let us sir. go for the next part. So this is what we just now understood, what is the principal plane and what is the principal stress. Okay, now going further, after uniaxial loading there can be a biaxial loading, right? Biaxial loading में भी types होते हैं, तो हम लोग एक सब पहले simple type लेंगे. Let us now understand the biaxial loading. अच्छा, can you give me example where the biaxial loading acts? We have discussed this biaxial loading earlier also. Triaxial loading में हमने देखा है. So can you give me any example, real life example where the biaxial loading will act? Any example where you think that there will be a biaxial load in the both directions, x as well as y? R wheel का axis. R wheel का axis. Some pillar or column. Balloon. No, pillar, something like something that holds up. Pillar. अच्छा, ठीक है. बट कौन से डायरेक्शन में? पिलर में कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है? ओके, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल. बलून सबने देखा है? बलून देखा है ना? हाँ सर. नहीं? अच्छा, Yes बलून sir, देखा है. यस सर. ओके, ठीक है. सो लेट अस नाउ गो फॉर सम biaxial stress. Okay, now let us have let's एक simple balloon है हमारे पास. Okay, balloon कैसे हम लोग blow करते हैं? By pressurized air, right? There will be some pressurized air. What this pressurized air will do? You put pressure on the walls. Walls के ऊपर pressure exert करेगा, because of that वो expand होता है, बराबर ना? और else गैस सिलेंडर देखा है सबने? कभी ना कभी तो गैस सिलेंडर देखा ही रहेगा. यस सर. वो भी क्या है? प्रेशर वेसल ही है ना वो भी. उसके अंदर भी क्या रहता है? Yes. गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, हाई प्रेशर, राइट? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऐसा गैस सिलेंडर है. तो गैस सिलेंडर का मैं वॉल खाली ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द वॉल ऑफ द गैस सिलेंडर वॉल. इसके अंदर सिलेंडर, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये सिलेंडर के वॉल्स के ऊपर क्या रहेगा? फोर्स रहेगा, बराबर. अभी ये प्रेशर क्या करता है? इट ट्राइज टू एक्सपांड दिस वन. तो यहाँ पे एक्सपांशन होगा, मतलब क्या होगा? एक तो एक्सपांशन डायमेट्रिकली होगा और लेंथ वाइज भी होगा. Yes sir. That means the force is acting in x direction as well as y direction. Y direction. Let's say ये सिलेंडर के सरफेस पे, सरफेस पता है ना सबको सिलेंडर का? Let's say ये मेरा सिलेंडर है, इसके सरफेस पे यहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर का पीस लेता हूँ. वो 1 सेंटीमीटर का पीस ये डायरेक्शन में खींचेगा उसको, बिकॉज सिलेंडर डायमीटर में भी बढ़ना चाहता है
और ये डायरेक्शन में भी खींचेगा उसे, राइट? व्हाई? बिकॉज सिलेंडर लेंथ में भी बढ़ना चाहता है बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो देयरफॉर अगर ये छोटा सा जो पीस लिया मैंने सरफेस पे, उसको इधर भी स्ट्रेसेस आएंगे और इधर भी स्ट्रेसेस आएंगे, इसी को मैं थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये मेरा पीस है जिसके ऊपर ये डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है। अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फोर्स आई एम डायरेक्टली राइटिंग अ स्ट्रेस सिग्मा एक्स, राइट? लोड अपॉन एरिया, दैट इज द सिग्मा एक्स। सो यहाँ पे भी सिग्मा एक्स, एंड ये डायरेक्शन में भी स्ट्रेस होगा। व्हाट इज दिस स्ट्रेस? सिग्मा वाई। वाई दोनों टेंसाइल लिया है। देयर कैन बी अ केस वेयर वन इज टेंसाइल अदर इज, तो हमको करना क्या है, जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें माइनस साइन डालना पड़ेगा अगर कंप्रेसिव है तो, राइट ना? तो बट सिंप्लिसिटी के लिए अवॉइडिंग दैट माइनस साइन आई एम टेकिंग ओनली टेंसाइल। अभी ये पर्टिकुलर इसमें ये प्लेन्स मैंने देखा, एक प्लेन वाई एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन दोनों पे स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं। अभी अगर कोई एक ऑब्लिक प्लेन लेता हूं मैं, जैसे मैंने पहले लिया था वैसे अगर कोई मैं वापस से एक बार ऑब्लिक प्लेन लेता हूं, तो नाउ कैन यू टेल मी ऑन दिस ऑब्लिक प्लेन, ये प्लेन मैंने लिया ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, विच इज मेकिंग एंगल थीटा। ऐसे था ना पहले वाले, देखो ये डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने एंगल लिया था। सिमिलरली नाउ आई आल्सो हैव टेकन दिस एंगल, ओके? लेट अस नेम दिस, दिस इज सेम हम लोग रखेंगे, ये ए बी है और ये बी सी है, ओके? और इसका जो थिकनेस है वो मैं कितना रख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ टी आई एम कीपिंग एज 1 यूनिट थिकनेस। जितना भी थिकनेस होगा इसका, ये जो पीस लिया उसका क्रॉस सेक्शन होगा ना कुछ, तो मैंने खाली उसका 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. मुझे Yes, मोबाइल sir. है मेरा, Yes, sir. मैंने खाली इतना बनाया। इसका थिकनेस है ना कुछ, तो ये थिकनेस मैं कितना अज्यूम कर रहा हूँ, 1 यूनिट, ताकि वो बार बार टी लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई एम सिंपली राइटिंग 1, जो भी होगा एरिया। हाँ, नाउ तो अभी क्या करेंगे, तो अभी ये जो मैंने ऑब्लिक प्लेन लिया, बीसी प्लेन ऑब्लिक है, ये प्लेन पे ये सबका इफेक्ट आएगा, सिग्मा वाई का भी इफेक्ट आएगा कुछ ना कुछ। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये प्लेन पे देयर विल बी सम stress in this direction, normal direction, and there will be some stress in this direction, that is tangential direction, right? बराबर है ना? यस Yes, sir. ये Yes, sir. प्लेन पे हाँ एक नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा और एक शेयर डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, ओके? हाँ, तो अभी क्या करते हैं, जो भी अभी मैं अगर ये बीसी पे सेक्शन लेता हूँ, बीसी पे अगर ये बीसी पे मैं ये मटेरियल को हाफ में डिवाइड करता हूँ, तो कोई भी एक साइड का मैं समेशन ले सकता हूँ, राइट? कोई भी एक साइड का, आर अंडरस्टैंडिंग इट? जैसे हमने पहले भी किया वैसे ही करेंगे। तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है उनको रिजॉल्व करता हूँ। कौन से डायरेक्शन में? उनको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा एन एंड टाउ। सी हियर, अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया तो ये ऐसा आएगा इसका कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट उसका ऐसे आएगा। देखो ये इसको पैरेलल है टाउ को, और ये सिग्मा एन को पैरेलल है, राइट? सिमिलरली इसको भी अगर रिजॉल्व किया तो वन विल बी अलोंग दिस एंड वन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। आर यू गेटिंग हाउ आई एम रिजॉल्विंग द फोर्सेस? Yes, sir. यस सर Yes, sir. इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी सिग्मा वाई कॉस थीटा, and this will be sigma y sin theta, बराबर? बराबर कि नहीं? Yes, sir. यस सर Yes. Yes, sir. अभी देखो ये थीटा अगर है तो ये एंगल कितना रहेगा? 90 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना रहेगा? थीटा। सो कैन आई Theta. राइट दिस इज थीटा एंड दिस Sigma विल x बी cos सिग्मा एक्स cos थीटा एंड दिस विल बी सिग्मा एक्स sin थीटा, बराबर है? Yes, sir. बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी, अगर देखो अभी ये दोनों का इफेक्ट, मतलब ये नॉर्मल कंपोनेंट किसका रिजल्टेंट है? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। तो टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन द नॉर्मल डायरेक्शन?
in the normal direction there is this sigma y sin theta and there is this sigma x cos theta. बराबर, ये दो फोर्सेस है. Now I am not taking sigma x and sigma y, मैंने रिजॉल्व करके दो दो कंपोनेंट्स लिए. So I am working on now components. So now tell me, ये दोनों का addition will be equal to sigma n होगा. So from this diagram can I write sigma n is equal to what? sigma y sin theta plus sigma x cos theta. Sigma x cos theta plus sigma y sin theta. Sin theta. हाँ, right. Sigma x cos theta plus sigma y sin theta. Okay. Wait a minute, मैंने ये गड़बड़ किया है. Okay, just a minute. एक गड़बड़ क्या है भी याद है. As I have taken already the stresses, तो stresses को मैंने resolve किया, but यहाँ पे area भी change होता है ना. ये area मेरा जो act करने वाला है, that is not on the AB area, it is now on the acting on BC area. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा rearrange करता हूँ. See here, instead of sigma x, I will be writing px, and instead of sigma y, I will be writing py. तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, पहले वाला जो मैंने किया था केसेस वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा. अदरवाइज यू विल गेट अ मिस्टेक इन राइटिंग द एरियाज, बिकॉज द एरिया इज आल्सो चेंजेस. प्लेन के साथ खाली स्ट्रेस नहीं चेंज होता, एरिया भी चेंज होता है. एरिया ऑब्लिक है ना, तो ऑब्लिक एरिया लेना पड़ेगा जैसे हमने पहले लिया था. सो फॉर दैट, हैविंग द सिंप्लिसिटी, लेट मी राइट डाउन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन सिग्मा y एंड आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ लोड ओनली. ठीक है, तो ये मेरा होगा py. एक मिनट, थोड़ा ये. सो ये मेरा py अगर है तो दिस विल बी py cos theta, this will be py sin theta, this will be px cos theta, and this will be px sin theta. ओके, और सर हम एरिया को डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, लाइक AB अपॉन cos थीटा, तो उसका हाँ वो लेंथ हो डायरेक्टली जाएगा. लिख सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया इसलिए मैंने शुरुआत वाला ये वापस रखा है ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. ओके, सो नाउ सी हियर, these are the forces acting on this area, right ना. We could have written that way also कि सिग्मा x कौन से एरिया पे है और सिग्मा y कौन से एरिया पे है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग लिख सकते थे. जैसे कि मेरा मैं अगर ये ट्रायंगल मैंने वापस से यहाँ पे बना दिया, सॉरी, ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये एंगल थीटा है ना, ये मेरा ए बोला है मैंने, ये बी बोला है और ये क्या बोला है सी, राइट. बराबर है. तो अभी ये ट्रायंगल में व्हाट इज cos थीटा, इट इज AB अपॉन BC, एंड व्हाट इज sin थीटा, इट इज AC अपॉन BC. तो हमें BC और AC मतलब हमें जो वैल्यूज चाहिए इसके लिए, तो वी कैन टेक दोज वैल्यूज. ठीक है, तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है तो आई कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आल्सो. ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. तो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस देयर विल बी सिग्मा x इन दिस डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोड देयर विल बी सिग्मा y इन दिस डायरेक्शन. ये स्ट्रेसेस आने वाले हैं और जो मैंने फोर्सेस रिजॉल्व किए वो रहे वहाँ पे. सो नाउ आई वांट टू राइट डाउन सिग्मा n का वैल्यू, सिग्मा n. तो व्हाट इज सिग्मा n, क्या होता है सिग्मा n, क्या होगा सिग्मा n? Sigma x plus sigma y. It is the load Pn divided by area, area. area A dash, right? तो लोड Pn क्या है? ये लोड Pn किसका होगा? नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ये दोनों का एडिशन होगा, Px cos थीटा एंड Py sin थीटा. बराबर है. तो कैन आई राइट डाउन दिस इज Px cos थीटा प्लस Py sin थीटा. बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय
व्हाट इज माय एरिया ए डैश, ये जो एरिया होगा BC का इट विल बी, ये जो ए डैश एरिया मैंने लिया है दैट इज नथिंग बट BC मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, राइट, दिस इज BC मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज थिकनेस मैंने कितना लिया 1 लिया, यूनिटी 1 लिया, ठीक है। अब ये BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, BC को मैं लिख सकता हूँ, व्हाट इज BC फ्रॉम हियर, इट इज AB अपॉन cos थीटा, राइट ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. or else rather I would like the this way upon BC, right? So अभी मैं इसको लिखता हूँ px is equal to cos theta, BC को क्या लिखूंगा मैं, it is AB upon cos AB upon theta. cos theta. cos theta. plus py upon sin theta, this time BC को मैं लिखूंगा AC upon AC upon sin theta. sin theta. राइट, ये ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज AC py upon अपॉन sin AC, theta. py लोड AC पे एक्ट करता है, ठीक है, इसके लिए। तो अभी ये cos थीटा ऊपर गया तो ये हो जाएगा px अपॉन AB इंटू cos स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा py अपॉन AC इंटू sin स्क्वायर थीटा, sin square theta. बराबर। व्हाट इज px अपॉन AB, दिस इज सिग्मा x, बराबर ना, Yes, sir. Yes. Yes. हाँ ऑफ कोर्स बराबर है cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज py अपॉन AC, Sigma y. y, so what is your normal stress, now the equation has changed, पहले वाला इक्वेशन हमारा देखो सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा ही था, क्यों, बिकॉज सिग्मा y 0 था, अरे अंडरस्टैंडिंग, सिग्मा y 0 था तो एक ही वैल्यू आया था ना हमारे पास, सिग्मा x के टर्म्स में ही मेरा सिग्मा n डिपेंड कर रहा था, नाउ इट विल Yes, डिपेंड sir. बोथ सिग्मा x एज वेल एज सिग्मा y, बराबर। हाँ, नाउ कैन यू गेट द इक्वेशन फॉर टाउ, व्हाट इज टाउ, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए डैश, बराबर। टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है, लेकिन देखो टेंजेंशियल फोर्स दो है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, बराबर। तो अभी यहाँ पे मैंने अज्यूम किया ना कि ये डायरेक्शन में टाउ एक्ट कर रहा है, राइट, सो दैट मींस ये बड़ा होगा, ऐसा अज्यूम करेंगे हम, आई डोंट नो एग्जैक्टली बड़ा है कि नहीं, हमने अजम्पशन किया है वो, so I can write down this is px sin theta minus py PY cos theta. cos theta Cos theta. on bc into BC 1, into 1. अभी क्या करेंगे इसको px upon bc into sin theta minus py upon bc into cos theta, okay, now see here px upon bc को क्या लिखूंगा मैं, it AC by sin theta. cos theta, बराबर ना, तो AC by sin theta भी लिख सकते हैं ना? sin theta तो sin Minus- theta भी लिख सकते हैं ना, साइन लिख सकते हैं, लेकिन px अपॉन AB आएगा तो सिग्मा x होगा ना, px अपॉन AC आके क्या फायदा, अरे गेटिंग में पॉइंट, हाँ. px हाँ, कौन से Yes. प्लेन पे एक्ट कर रहा है, AB पे एक्ट कर रहा है, तो उसको AC लिख के क्या फायदा है, लिख तो सकता हूँ मैथमेटिकली करेक्ट है बट फायदा नहीं ना, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो py अपॉन इधर मैं लिखूंगा AC अपॉन साइन थीटा, और ये है cos थीटा ऑलरेडी, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये px अपॉन AB को मैं सिग्मा x लिखता हूँ, सिग्मा x इंटू साइन थीटा cos थीटा माइनस सिग्मा y इंटू साइन थीटा cos थीटा, ओके। तो अगर मैंने साइन थीटा cos थीटा कॉमन लिया, सिग्मा x minus sigma y by 2 sin x 2 माइनस theta. सिग्मा y हो जाएगा, एंड इसको अगर सिग्मा सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन 2 थीटा बाय, Theta by 2. ओके फाइन, हैव यू अंडरस्टूड दिस, सर एक Yes. बार सर Yes, sir. पी वाई अपॉन ए सी जो पार्ट है उसको हमने सिग्मा वाई साइन थीटा होगा ना सर, वो वही लिखा है. सिग्मा एन जो है। यार AC प्लेन ऐसा है, AC ये AC प्लेन है, बराबर, और इसके ऊपर लोड ये py है, ओके सर मैं ठीक है, मैंने भी ओके सर मैंने हाँ। गलत समझा। दैट इज व्हाई ये, आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, फर्स्ट टाइम करोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, बट दैट इज व्हाई मैंने जितना पॉसिबल है इजीएस्ट करना उतना किया, अदरवाइज आई वुड हैव डायरेक्टली रिटन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा x, बट वो टाइम पे तुम्हें एरिया थोड़ा कंफ्यूजन होता, ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिंपल वे से गया, सिग्मा कैसे लिखते हैं, लोड अपॉन एरिया, लोड को कैसे लिखो, एरिया को कैसे, ठीक है। हाँ, अभी देखो तुम्हारे पास दो रिलेशन आया, एक तो ये टाउ के लिए, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन,
and this is also another relation. From this relation, now can you figure out where the principal plane will be? अभी ये particular system के लिए principal plane कौन सा होगा? 45 डिग्री 45? नहीं 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 सर Principal plane डिफरेंशिएशन कौन सा कर होगा? देते ना डिफरेंशिएशन कर देते So 0. No, wait. Here I'll be writing down for the principal plane. ये तो ठीक है, चला समझ में आ गया, मैकेनिक्स यूज Whenever the sir theta is 0 or pi, for principal plane what is the condition? Theta 0. stress शियर should be zero. स्ट्रेस 0 होना चाहिए. क्या जीरो होना चाहिए? शियर स्ट्रेस. टाउ शुड बी जीरो. Tau zero होना चाहिए. रिलेशन पता नहीं हमको. तो Tau zero ए बी होना और चाहिए. ए Tau सी. का equation है. तो that means sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta must be equal to 0. बराबर? तो इसमें दो कंडीशन आता है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसमें दो कंडीशन आता है, एक तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई शुड बी 0 एंड दूसरा क्या है? sin 2 theta is equal to 0. हाँ, तो हम लोग थीटा पे जा रहे हैं अभी, बिकॉज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दे आर नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर sin 2 थीटा अगर 0 है, बराबर, तो थीटा का Theta is कितना 0 or pi. Right. आइदर 0 N pi. 180. पाई बाय 2 n pi by 2 बराबर है ना? N pi. तो n 2 pi by theta 2 पाई बाय 2 होगा ना सर So pi by 2 2. theta must be 0 or pi by 2, so theta will be equal to 0 and 90 पाई degree. बाय 2 90. so there will be two planes on which the shear stress is 0. Now tell me, can you figure out कौन से दो planes है वो? theta 0 मतलब कौन सा plane? तो AB plane. And theta 90 मतलब कौन सा plane? AC plane. एसी AC. AB और AC plane पे तो लोड अप्लाई किया था, वहाँ पे shear stress आएगा ही नहीं. AB plane पे सिग्मा x है और AC plane पे सिग्मा y है. Now अगर ये यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस है? सिग्मा x, और यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस है? सिग्मा y. अगर ये दोनों में से ऐसा है कि सिग्मा x बड़ा है, तो ये AB प्लेन को क्या बोलूंगा मैं? मेजर प्रिंसिपल प्लेन. एंड ये AC प्लेन को क्या बोलूंगा मैं? माइनर प्रिंसिपल प्लेन. समझा? इसलिए मैं बोला था कि दो प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल टाउ 0 होता है, और उसमें से एक वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, एक मिनिमम रहेगा. कौन सा रहेगा हमको पता नहीं, मैंने अज्यूम किया. वैल्यूज दिया रहेगा तो आई कैन कैलकुलेट कि कौन सा मैक्सिमम. ओके, सर आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सर ये मेजर और माइनर वाला सर नहीं समझा. हाँ सर बोलो. एक सेकंड, एक डाउट था कि यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर इक्वल हो गए तब भी टाउ 0 आएगा ना, तो वो तीसरा प्लेन रहेगा क्या? क्या? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर इक्वल हो गए तब भी तो टाउ 0 ही आएगा ना, तब हाँ, तभी तीसरा टाउ प्लेन. 0 ही आएगा. तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा? मतलब देखो, टाउ तो 0 ही आएगा वो टाइम पे भी, बट उसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं निकलता है ना. हाँ, मतलब वो इंटरमीडिएट पे नहीं रहेगा, प्लेन ही रहेगा दोनों के बीच में हमको का. थीटा का कंडीशन चाहिए था कि एट व्हाट एंगल थीटा टाउ इज 0. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो इक्वल रहेगा तो भी टाउ का वैल्यू वहाँ पे 0 ही आएगा, लेकिन वो कौन से प्लेन पे आएगा? तो उसके लिए वही करना पड़ेगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 0. Okay. So these are the only two planes where it is going to be 0. Now the condition is कि मेजर माइनर हमने समझ में लिया, समझ आ गया कि सिग्मा y अगर ज्यादा होता तो I would have taken that is major plane and that's the earlier one as minor plane. Now can you figure out where the tau is going to be maximum? क्या करेंगे उसके लिए? यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. टाउ मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे? सर डिफरेंशिएट करेंगे टाउ को और उसको इक्वल टू 0 पे इक्वेट करेंगे. बोलो, मैंने सुना नहीं, क्या बोला? थीटा बाय डी थीटा निकालेंगे इक्वल टू 0. सुना ही नहीं दे रहा है, जोर से बोलो. थीटा बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0. सिंपलीफाई करो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ हाँ. शियर स्ट्रेस मस्ट बी इक्वेटेड विद 0. ओके, हाँ, तो वो कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास जगह नहीं था, और एल्स आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज. सॉरी, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ऐसा प्लेन फाइंड करना है जहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा. तो आई विल राइट डाउन d tau by d theta must be equated with 0. So what is that d by d theta of? What is the formula? Sigma x minus sigma y x minus sigma y by 2 into into sin. theta. Sin 2. हाँ, कैसे करेंगे अभी?
अब ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 उसके लिए तो कांस्टेंट हो ये भी जाएगा ना, कांस्टेंट है सर। बेसिकली इट इज cos 2 डेरिवेटिव theta by 2 equal to 0. sin 2 theta, right? What is derivative of sin 2 theta? cos 2 theta by 2. Sin डेरिवेटिव cos ही आता है ना, so it is cos 2 theta into 2 equal to 0. बराबर ना, into 2 आएगा कि नहीं? हाँ तो वैसे भी into 2 नहीं लिखा तो भी चले, 0 है साइड में, हाँ cos सर, 2 0 theta है। must be 0. हाँ मुझे बता अभी cos 2 theta must be 0, तो 2 theta का वैल्यू कितना आएगा? cos का वैल्यू 0 कब होता है? pi by 2. pi by Pi by 2. 90 degrees 90 degrees. And pi by 2. Oh, 45. 45 पे नहीं, cos का वैल्यू 0 कब होता है? 90 डिग्री और 270 डिग्री पे भी 0 होता है, बराबर ना? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, बराबर। बट हमें क्या चाहिए, ये दो वैल्यूज क्यों लिया मैंने? क्योंकि मेरा लिमिटेशन है थीटा का। मैथमेटिक्स मुझे बोलता है कि cos 2 थीटा 0 है तो 2 थीटा का वैल्यू कैन बी एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 का भी। बट मेरा लिमिटेशन है कि मेरा एंगल 0 to 360 के बीच में ही है, बराबर ना? मेरा प्लेन 0 to 360 के बीच में ही है ना, तो मुझे ऐसे दो, वो 0 to 360 जो मेरा रेंज है या जो मेरा डोमेन है, उसमें ऐसे दो वैल्यूज कौन से जो सेटिस्फाई करते हैं cos 2 थीटा को 0। तो देयरफॉर वो दो वैल्यूज आते हैं 90 और 270। तो देयरफॉर मेरा थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 45 और 135. ओके, तो ये वैल्यू को, ये एंगल को मैं बोलूंगा थीटा 3 और ये इसको मैं बोलूंगा थीटा 4। और ये जो पहले वाले जो थे दो एंगल्स जहाँ पे मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम था, तो इसको मैं बोलूंगा थीटा 1 और इसको मैं बोलूंगा थीटा 2। दिस इज द नॉमेनक्लेचर। थीटा 1 बोला तो इट इज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, थीटा 2 बोला तो इट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, थीटा 3 बोला तो इट इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम शियर प्लेन, एंड थीटा 4। तो यहाँ पे अगर तुमने नोटिस किया है तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 आल्सो। व्हाट इज द रिलेशन? 90 डिग्री का गैप है ना, एक 0 है तो Yes, दूसरा sir. 90 है। Yes, और यहाँ sir. पे भी अगर देखते हो तो इधर भी 90 डिग्री का गैप है। 90. Are you understanding it? Yes. तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्वेशन लिखना चाहता हूँ कि जो दो प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन्स है वो एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर। Perpendicular. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने जाते हैं हम लोग। नोट, क्या नोट है कि द मेजर एंड माइनर principal planes are always Normal to each other. perpendicular to each other. ओके, तो तुम्हारा जो थीटा 1 एंड थीटा 2 रहेगा, उनके बीच में कितने का गैप रहेगा? ठीक है, 90 थीटा degree. 2 विल बी थीटा 1 प्लस 90। ओके, दिस इज वन। सेकेंड क्या है? टू मैक्सिमम शियर प्लेन्स आर ऑल्सो at 90 डिग्री टू ईच अदर, बराबर ना? ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों प्लेन्स भी, मतलब थीटा 3 एंड थीटा 4, उनके बीच में भी कितने का गैप है? 90 डिग्री का गैप है। ठीक है, सो थीटा 4 कैन बी रिटन एज थीटा 3 प्लस 90। यहाँ से और एक कंक्लूजन निकल सकता है। क्या कंक्लूजन निकलेगा? कैन यू टेल मी? कि तुम्हारा थीटा 3 जो है, थीटा 3 वो है थीटा 1 प्लस 45, एंड जो तुम्हारा थीटा 4 है वो रहेगा थीटा 2 प्लस 45। इज इट नॉट? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझा क्या तुम्हें कि अगर मैं लेट से, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा प्लेन है मेजर प्रिंसिपल प्लेन P1, मेजर P1 लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो मेरा P2 कहाँ पे रहेगा? इधर रहेगा, ये मेरा रहेगा P2, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री। ठीक है, एंड अगर मुझे प्लेन ये वाले ड्रॉ करने हैं, शियर प्लेन, तो एक शियर प्लेन मेरा ऐसा रहेगा जो कितने डिग्री एंगल पे रहेगा? 45 डिग्री फ्रॉम हियर, एंड दूसरा प्लेन
ऐसा रहेगा, दोनों के बीच में यहाँ पे भी 90 डिग्री रहेगा, बट यहाँ से उसका एंगल 45 रहेगा। ठीक है, दिस इज shear plane 1, this is shear plane 2. Are you understanding? Yes sir. Yes sir. All of you? Yes Any sir. doubt till now? Yes sir. सर ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है वहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है, उसके जगह पे अगर हम sin 2 थीटा इक्वल टू 1 का वैल्यू होगा तो भी वो मैक्सिमम होगा, तो सर वैसे भी हम थीटा निकाल सकते हैं ना सर? ये हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन में थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव लिया, तो सर अगर sin 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो सर वो मैक्सिमम होगा, तो सर डेरिवेटिव ना लेके डायरेक्ट इक्वेट किया तो? सुनो सुनो सुनो, बट उसमें क्या है कि अगर मैंने sin 2 थीटा का वैल्यू 1 लिया, हाँ तो भी वही सेम ही आएगा ना आंसर। हाँ सर, हाँ तो सर वो भी राइट ही है ना अप्रोच? मैथमेटिक्स में कैसा भी जाओ, इट इज योर ओके ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कौन सा सिस्टम था? बायएक्सियल Biaxial loading. ओके, बट देयर इज अ कैच कि बायएक्सियल लोडिंग में हमने जो अप्लाइड लोड था ना वो दोनों टाइम पे टेंसाइल लोड ही अप्लाई किया था। इसमें क्या वेरिएशन आ सकता है? और एक टेंसाइल एक कंप्रेशन। वो तो ठीक है, उसमें माइनस लिख देंगे, टेंसाइल कंप्रेसिव वेरिएशन हो तो एक को माइनस लिख दिया, एक को प्लस लिख दिया तो हो गया। व्हाट एल्स? लोड जब अप्लाई हो रहा है बायएक्सियल तो उसके टाइम पे शियर स्ट्रेस भी तो एक्ट कर सकता है, इज इट नॉट? समझा क्या मैंने क्या बोला? कि मैंने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिया, कैन देयर बी अ टाउ शियर स्ट्रेस एक्टिंग इनिशियली? अंडरस्टैंडिंग? ये जो अप्लाइड लोड था मेरे केस में क्या था, दो ही था ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बट ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के साथ शियर स्ट्रेस भी तो एक्ट कर सकता है कोई एक, दोनों प्लेन पे या एक ही प्लेन पे, बराबर ना? तो अगर वो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे ऑब्लिक प्लेन पे, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा और उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ये देखना है। ओके सर हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड का वो मेजर और माइनर नहीं समझा मेरे को, वो समझ। दो प्लेन समझाना मुझे, क्या ऐसे दो प्लेन है जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस सॉरी जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है, बराबर? देखो ये 2 थीटा 0 आया, मतलब 0 से लेके 360 ये मेरा डोमेन है, बराबर ना? 0 एंगल मेरा 0 से 360 तक वेरी करता है, उसमें दो वैल्यू ऐसा है जहाँ पे 2 थीटा 0 होता है, ठीक है? तो एक था 0 डिग्री, एक 180 डिग्री, बराबर? तो उसके लिए मैंने दो प्लेन लिया, तो ये दोनों प्लेन में से कोई एक प्लेन पे सिग्मा का वैल्यू जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, उसको मैं मेजर बोल रहा हूँ, और जो दूसरा वैल्यू है उसको माइनर बोल रहा हूँ। ओके समझा क्या? वापस बोलूं? we'll go it slowly because this is something into trigonometry and बहुत सारे लोग trigonometry ऑप्शन में छोड़ते हैं। Have you understood this? How many of you understood this actually? थोड़ा पोल लेते। 96%, 96 people are there. 96 मतलब एक तो मैं हूँ। 95 are there. How many of you have you understood? Yes sir. Yes sir. Understood, समझा sir. यस सर। समझा सर। यस सर समझा। समझा सर। समझा सर। Yes sir. अरे यस सर में नो सर क्या आ रहा है? कौन है वो नो वाले? बताओ आगे, तो डाउट्स है तो। Is there anyone who didn't understand at all? अच्छा कोई नहीं है। ओके सर हेलो सर ये सर जो हमने वो सिलेंडर एज्यूम किया है उसके अगर हम सेंटर में देखेंगे तो एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, साइडवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अगर सर तीनों एक्सिस अगर हम कंसीडरेशन में लेंगे तो सर तीनों एक्सिस के तरफ उसका फोर्स अप्लाई हो रहा है ना? तो अभी तो मैंने खाली ये थिन शेल था ना, थिकनेस बहुत कम था इसका, इसके लिए तीसरे डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो लिया नहीं है। अच्छा सर नेग्लिजिबल मतलब? हाँ अभी लिया नहीं है, बट देयर विल बी अ सिस्टम, देयर आर मल्टीपल सिस्टम जहाँ पे तीसरे डायरेक्शन में भी स्ट्रेस आता है, तो वो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, गेटिंग इट? बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारा जो सेंटर मटन का सिलेबस है, वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू बायएक्सियल सिस्टम्स। ओके, ओके जब तुम
advanced stress analysis में जाओगे, not in undergraduate course, when you go to postgraduate courses, there you go for advanced stress analysis. So there you will go for such systems where three-dimensional load will be there and you have to find out the principal planes. ठीक है? Okay sir, thank you. हाँ, तो currently अभी ये नहीं है. अच्छा, Aditya Narkar is saying the internet is not stable. So for those who don't have internet issue, though have internet issue, I'll be uploading my videos. I guess I have uploaded all of them up to the last lecture. So you can download and see it later on. Okay, वो एक option है. अच्छा, Shambhavi is saying something. अच्छा, उसका बहुत पहले का doubt है वो मैं अभी देखा. Gayatri has raised hand. Yes, Gayatri, can you give me the query? How many principal planes can be there? Three mutually perpendicular. Okay, Shambhavi is asking how many principal planes will be there. For two axial, that is biaxial system, there will be two principal planes. But when you go to triaxial, there will be three. Okay, Satyanarayan is asking, is there any plane where normal stress is 0 and we get only shear stress? Of course, we can get, but वो कोई significant नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको consider ही नहीं करते. Okay, it can be. मतलब तुम ऐसा plane find कर सकते system में जहाँ पे sigma 0 है, tau का value आएगा, but वो इतना significant नहीं है. मतलब उसका value ना बहुत maximum है जो मैं consider करूँ, ना वो shear में maximum है जो मैं consider करूँ. That is why we have not considered. Okay. How to decide which is major and minor? The value will decide. Right now we don't have any values. That's why मैंने assume किया कि sigma x बड़ा है. तुम्हारे पास value आएगा तो तुम बता सकते हो ना कि 50 ज़्यादा है या 60 ज़्यादा है. Okay, तो you can decide major minor. हाँ. Okay. सर. हाँ बोलो. सर हमने अभी जो ये जो डेरिवेशन किया है ये सिर्फ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है ना? हाँ. But cross section how does it matter? Cross section का तो matter नहीं है. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह चेंज हो सकता है उस हिसाब से. अगर मेरा क्रॉस सेक्शन ये ऐसा है, सपोज सर्कुलर है, मैं एंगल पे जाता हूँ तो वो cos थीटा में कन्वर्ट होता है ना. Doesn't matter. These relations are universal. मतलब you can use for any of the cross section case. सर्कुलर में तो सर चेंज होगा ही. सर्कुलर में वो अलग हो जाएगा क्योंकि अगर एरिया पे सर्कुलर में अगर चेंज हो रहा है वो क्रॉस सेक्शन तो उसका एरिया वगैरह चेंज हो जाता है. एक मिनट में बताता हूँ. ये मेरा रॉड है. नाउ दिस टाइम आई हैव कंसीडर्ड सर्कुलर रॉड. बराबर. इसका एरिया मैं लेता हूँ A. कितना लिया एरिया? A. अभी मैं ये वाला इंक्लाइन एरिया लेता हूँ. ओ सॉरी. ऐसा ये इंक्लाइंड एरिया ये वाले एरिया से कितने डिग्री एंगल पे? थीटा पे. बराबर. तो इसका एरिया जो रहेगा वो A डैश रहेगा एंड दिस A डैश विल बी इक्वल टू A cos थीटा. यू कैन चेक मैथमेटिकली. Have you studied any area vector concept in mathematics? Yes sir. Area vector is a normal drawn to the area, right? So your ये area vector A bar है and ये area vector A dash bar है. So your relation between A dash bar and A bar will be equal to A bar upon cos theta. That means the area is cos component of that. Okay? तो कुछ doesn't matter. हमने भी cos ही लिया है ना. वो thickness को मैंने assume तुम्हें समझने के लिए वो 1 लिया था. Otherwise you will ask me the question कि वो कैसे आया. तो इसके लिए मैंने rectangular simplified way में rectangular cross section दिया. But it is valid for any of the cross sections. Okay? Any doubt? Okay sir. Fine. So now we can go for the third system where it can be where there will be shear stress will also come into the picture. Okay.
But to understand the shear force and shear stress, there is some sign convention given in the principal stress and strain, and the sign convention will be following. That suppose sign convention for अभी मैंने क्या किया, एक सिंपल सरफेस लिया रेक्टेंगल बायएक्सियल लोडिंग के लिए, इसके ऊपर अगर शियर स्ट्रेस ऐसा एक्ट करता है टाउ, एंड उसका काउंटर शियर स्ट्रेस यहाँ पे होता है, बराबर सबको पता है ना, ये काउंटर शियर स्ट्रेस आता है जब तुम एक सरफेस लेते हो और एक सरफेस को अगर ऊपर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स करते हो तो नीचे वाले सरफेस पे उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आएगा। आई होप सबको ये पता है। जैसे हम लोग सरफेस के लिए लेते हैं ना, सिग्मा एक्स इधर लिया तो इधर भी आता है ना, तो दे आर काउंटर स्ट्रेसेस ऑफ ईच अदर, राइट? कंसीडर करते हुए एक ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो वैसे ही ये सिग्मा अगर ये टाउ है तो ये भी टाउ रहेगा, ओके? तो and there can be a system where the shear stress is acting like this. There can be a system where ऐसे भी एक्ट कर सकता है शेयर स्ट्रेस, ओके? तो अगर तुम इसको देखते हो ये शेयर स्ट्रेस को, तो it is trying to rotate this block in this direction, that is clockwise, बराबर? एंड इसको देखते हो तो ये इसको ऐसे रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, एंड दैट इज आइदर एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो कन्वेंशन हमारा ऐसा है कि अगर ऐसे टाइप का शेयर स्ट्रेस है, क्लॉकवाइज है, तो वी विल अज्यूम इट इज पॉजिटिव, एंड अगर ऐसा है तो वी विल अज्यूम इट इज negative. This is the convention which we are going to follow, ठीक है? When we are going to deal with this kind of shear stresses which are acting in clockwise and anti-clockwise direction both. Okay, have you understood this? कि ये clockwise ये convention है जो हम लोग follow करेंगे, because otherwise जो derivation में use करूँगा, derivation में मैं जो condition use करूँगा वो ऐसा रहेगा कि clockwise को मैं positive दूंगा, anti-clockwise को मैं negative दूंगा, and जब numerical मुझे पूछेंगे exam में, तो इन दैट केस अगर मैंने जो मेरा फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यूज किया एज इट इज, ठीक है? तो वो टाइम पे अगर कन्वेंशन में गलती हो गया तो तुम्हारा फॉर्मूला में रॉन्ग हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक हमने क्या अज्यूम करके आया कि टेंसाइल को पॉजिटिव लो, कंप्रेसिव को नेगेटिव लो, एंड वही यूज करके मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला में मेरा आया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, लेकिन अगर किसी ने कन्वेंशन उल्टा है उसका, एंड अगर उसने सिग्मा एक्स को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव डाला तो आंसर डिफर होगा। तो देयरफॉर जो कन्वेंशन है डेरिवेशन के टाइम पे वो हमें याद रखना पड़ेगा, सो दैट व्हेन द न्यूमेरिकल कम्स आई कैन either use the same convention, and if I want to change it, I want to change it in the formula as well. I need to change the formula as well. Okay? सबको समझ में आ रहा है ये कन्वेंशन क्या है? अगर shear stress use दे रहे हैं तो now my system will be like having normal stresses as well as shear stresses, and ये सबका इफेक्ट, ये सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा मेरे ऑब्लिक प्लेन पे, ठीक है? which will be in terms of normal stress and shear stress. So how to calculate that? अच्छा, before that I have one point which we left out in the earlier cases also, that is this one. अभी देखा मैंने कि ये जो मेरा AC प्लेन है या BC प्लेन है, ये BC प्लेन पे सॉरी ये मेरा BC प्लेन था, ओके? ये BC प्लेन पे दो स्ट्रेसेस आए, दो स्ट्रेसेस आए, एक था नॉर्मल स्ट्रेस और एक था शियर स्ट्रेस। शियर मतलब टेंजेंशियल। तो कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेन? यस, कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस? सिग्मा आर कितना होगा वो? The root of sigma n square plus it is the root of, ये वेक्टर्स है ना, तो सिंपली इट इज अ रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस योर शियर स्ट्रेस स्क्वायर, गेटिंग इट? एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट द एंगल, ये सब तुमने मैकेनिक्स में किया है, राइट? सिमिलरली आल्सो यहाँ पे भी
नॉर्मल और शेयर है, तो इधर भी वही सेम फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस इज गिवन बाय रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस प्लस टाउ स्क्वायर. So in this way you can find out the resultant stress acting on a plane, and on principal plane ये तुम्हारा resultant stress क्या होगा? On principal plane ये resultant stress क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस होगा. It will be only sigma, right? Resultant stress will be only sigma because your tau is 0 at that point, right ना? तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है whenever we are finding out the stresses. मतलब अगर मेरे को एक कॉलम डिसाइड करना है उसके ऊपर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो मैं बेसिकली उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा एंड कौन से प्लेन में आएगा तो हमें पता चलता है. वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू पूरे मटेरियल में कहीं भी नहीं आना चाहिए, so that it will not fail. Okay, so there are different failure theories how the material has to be designed based on which failure, कौन से मतलब which failure you are considering, whether you are considering failure due to principal stress, whether you are considering failure due to maximum shear stress. So based on that we have certain failure theories, and those failure theories they work good for different kinds of materials. For example, we have different material grouping. For example, we have ductile materials, we have the brittle materials, right? We have the materials which are good in only tension, only compression. So ऐसे जो materials है उनके केस में कौन सा मतलब by so much of research there are some theories developed by some of the researchers, and those theories we use. The theories are maximum principal stress theory, the maximum shear stress theory, the maximum strain energy theory. The strain energy, what is the strain energy, we are going to study in this the next chapter, next to next chapter in this strength of materials only. तो ये सब जो है हमारा ये basics है to understand the failure theories, and which is the very first part which you are going to study in the next semester, which will come next semester, which will come to you. That is your not next semester, next to next semester, that is MD1, machine design 1. So in any machine design component, the very first thing is what you should know is the failure theory, how your component is going to fail. ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये कंपोनेंट कैसे फेल हो सकता है तो तुम उसको बचा सकते हो फेल होने से. उसके लिए कौन सा थियरी यूज करने का, डिपेंडिंग ऑन विच मटेरियल, दैट इज टू बी स्टडीड. एंड वो सब पता करने के लिए हमें ये सब जो हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, कहाँ पे है, किधर मैक्सिमम है, हाउ टू कैलकुलेट, ये सब हमें पता होना चाहिए. गेटिंग इट? सो this everything whatever you are studying in this particular chapter will be required in same 5 directly, and nobody is going to teach you everything back again. So therefore this as this is virtual, so you can save this and you will be requiring this again and again when you are going for machine design part. Okay, so I guess it's 12 o'clock. So in afternoon session we'll be going for that system which I was talking about, the system which involves both normal as well as shear stress, and how we will be finding out what is the resultant stress on the oblique plane, and then what is the simplest method to figure out this. मतलब ये सब अभी तुमने देखा कि ये ऑब्लिक प्लेन पे ये फॉर्मूला आ गया कि अभी ये तो सिंपल फॉर्मूला ये केस में आया कि सिग्मा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर देगा सिग्मा वाई, बट यहाँ पे शेयर वाज नॉट प्रेजेंट. अगर शेयर स्ट्रेस आता है तो ये फॉर्मूला का लेंथ अभी और बढ़ते जाने वाला है. तो somebody may find that कि इतना फॉर्मूला मुझे याद नहीं रखना है, तो what graphical method we have to calculate and to locate the maximum principal and distance, and that method we call Mohr circle method. So that also will be studying in the next class. I'll be starting that class at 2 o'clock today, so that we will continue with this. Okay, first of all we'll understand the complex system involving both the direct and shear stress, and then we'll go for Mohr circle method, where we can avoid all this calculation and we can identify the principal planes and principal stress value graphically. Okay, understanding this? Any doubt till now? अच्छा, एक कोई तो chat box में आया है. Okay, one like in FEA. What do you mean by one like in FEA? अच्छा, the Mohr circle method. अच्छा, have you studied Mohr circle method in FEA? Yes sir. Yes sir. I didn't taught that, I don't know. You were there sir. I was there but I was Bilal sir ने सिखाया था सर. महेंद्र सर सिखाया था हमें.